So basically what we have here is, as you can see, generally how do I start? आपको टॉप सेंटर में दिख रहा होगा, वी हैव ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. दिस ऐप कैन वर्क बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ऐप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती है. अगर आप देखोगे टॉप में सब्सक्राइब के नीचे देयर इज अ डाउनलोड मैनेजर बटन. इफ आई क्लिक ऑन टू दिस, आपको सारे के सारे स्टैंडर्ड्स इसमें दिख जाएंगे. आप इसको क्लिक कर सकते हो. ऐप के अंदर ही इसका डाउनलोड मैनेजर है. ऐप अपना ऑफलाइन वर्जन डिवाइस में डाउनलोड कर सकती है, एसडी कार्ड में भी और इंटरनल मेमोरी में भी. सो बोथ दी ऑप्शंस आर अवेलेबल. दिस ऐप हैज गॉट 4 फीचर्स: स्टडी, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस. तो हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे. पहले हम एक बार स्टडी सेक्शन को देख लेते हैं. दिस ऐप हैज ऑल दी सब्जेक्ट्स. अगर हम एक सब्जेक्ट में जाते हैं, आपने देखा होगा मैंने 8 साइंस खोला है. हम कोई भी चैप्टर खोल सकते हैं, लेकिन हमने प्री सेट चैप्टर्स मॉड्यूल सब सेट किया हुआ है. यू गेट द लिस्ट ऑफ ऑल दी चैप्टर्स. को बॉटम राइट साइड पे एक रेड कलर का बटन दिखेगा. अगर आप उस बटन को क्लिक करोगे तो आपको सारे सारे बोर्ड्स इसमें विजिबल होंगे. बट ये स्कूल के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि स्कूल को अपनी बुक्स के हिसाब से कस्टमाइजेशन मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीबीएसई को चूज करता हूं तो मेरे पास उसके पब्लिशर्स अवेलेबल हो जाएंगे. जैसे मैंने ऑक्सफोर्ड को चूज किया तो ये पूरा मेन्यू ऑफ ऑक्सफोर्ड के हिसाब से रीअरेंज हो जाएगा. ठीक है जी. लेकिन हो सकता है कि हम यहाँ पे जो आपके लिए रेलेवेंट इसलिए नहीं, क्योंकि आपके बुक्स के साथ ऑलरेडी मैप्ड ही होगा, तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. अब मैंने सीबीएसई को चूज किया है, स्मार्ट स्कूल डिफॉल्ट को चूज किया है, 8 के अंदर साइंस के अंदर हूं मैं. अब देखिए स्टैंडर्ड 8 के अंदर, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं आई विल गो इनटू चैप्टर 12. अब इसके अंदर हम 7 एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग. सबसे पहला है इंटरेक्टिव ई बुक. इस इंटरेक्टिव ई बुक में सबसे पहले हमारे पास वीडियोज होते हैं. वी हैव वीडियोज, देन वी हैव की टर्म्स, देन वी हैव क्विजेस, देन वी हैव क्वेश्चन आंसर्स, देन वी हैव वर्कशीट. अब इसके अंदर हम प्ले करते हैं रोल ऑफ फ्रिक्शन इन आवर लाइफ, एडवांटेजेस, मॉड्यूल नंबर जो आपका है 4th नंबर का मॉड्यूल है, हम इसे चलाते हैं. अब इसको चलाने के बाद we are going to learn in this module. Friction is necessary. Friction, as you know, always opposes movement. That is, if I apply a force in this direction to move this object, then the frictional force, it will act in the opposite direction. But then the question is, why is this friction necessary? Okay, let's start this concept by taking a simple query. So, what do you think? Is it possible for us to move of our own on a hard surface? Like the person who's walking on the ground, so is he actually walking of his own, or is there some kind of force which is assisting him to walk? Okay, let's explore it out together. Now that we already know, according to the first law of motion given by Newton, only an unbalanced external force can set a body in motion, and there's no stationary body which can move of its own. So by taking this concept forward, let us see how we manage to walk on ground. So as you can see here, there is a person who's walking on the ground. So which external force helps him to move? And does he really need any friction to walk? Let us see the mechanism which is involved in walking. So when we walk, we lean forward, shifting the weight of our body on the front foot. And we also press downwards and push the ground backward with our back foot. But now the question is, what role does friction play here? Well, friction between the sole of our shoes and the ground, it provides the necessary grip which prevents us from slipping. Now, you also know that to every action there is an equal and opposite reaction, and that's given by Newton's third law of motion. So when we are pushing the ground below in the backward direction, the ground, it exerts an equal and opposite force, the reaction force on our feet to push us forward. And that is precisely how friction, it helps us to walk. Okay, now I have a question for you all. Why do you think we slip when we step on a banana peel or be it any other oily surface? Well, the banana peel or the oily surface, it offers less friction, and that is why we don't get the necessary grip between the sole of the shoes and the ground, and therefore we slip and fall down.
Now, by using the above mechanism which we've discussed, can you explain me how a car moves forward? Well, to your surprise, friction plays a major role here as well. The rotating tire of the car, it pushes the road in the. इसके बाद आता है की टर्म्स। कोई भी चैप्टर जो होता है उसके अंदर जब तक हमारे उसके की टर्म्स हम नहीं बताएंगे तब तक वो बच्चे को कुछ हर चैप्टर के अंदर पहली बार कुछ ऐसे टर्म्स बताए जाते हैं जो बिना जाने नॉट अंडरस्टैंड दी चैप्टर। सो दीज आर दोज की टर्म्स जो कि चैप्टर में है। की टर्म्स के बाद आता है हमारा क्विजेस। ये वो क्विजेस हैं जिसका आंसर आपको वहीं के वहीं मिल जाएगा, आप अटेम्प्ट करोगे तो। जैसे मैंने इसको किया, यहाँ मैंने चेक किया, उसका आंसर आ गया। हमने नेक्स्ट किया, हमने उसको अटेम्प्ट किया, उसका आंसर वहीं आ गया। अब इस क्विजेस के बाद आता है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन एंड आंसर्स का क्या मतलब है? जैसे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आपके 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क, 5 मार्क क्वेश्चन, ये सब यहाँ पे रहते हैं, ये आप दिखाते हो। इसके बाद आता है आपका वर्कशीट। अब वर्कशीट्स क्या है? जैसे आपकी बुक के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। आप इसको करते हो, इनके आंसर आपको वहीं नहीं मिलते, आप इसे स्क्रॉल करते हो, जैसे आप इसको क्लिक करते हो, आपको इसका आंसर यहाँ पे विजिबल होता है पीछे जाके। सो अच्छा, आपने एक चीज यहाँ ऑब्जर्व करी होगी, यू हैव सीन दैट की टर्म्स है, क्विजेज हैं, क्वेश्चन आंसर्स है, वर्कशीट है। जो मैंने खोला, इनके आगे एक ब्लू टिक आ गया, लेकिन ये ब्लू टिक आपका इस मॉड्यूल के सामने नहीं है, जो रोल ऑफ फ्रिक्शन इन आवर लाइफ है, एडवांटेजेस, क्योंकि हमने उस मॉड्यूल को पूरा नहीं देखा। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ब्लू टिक का, ये स्मार्ट फीचर है। इसका मतलब ये है कि जब तक आप मॉड्यूल को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक नहीं देखेंगे, आपका ब्लू टिक वहां पे नहीं आएगा। ये हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कि अगर आप स्क्रॉल करके देखोगे तो ब्लू टिक नहीं आएगा, इससे हमें पता चलता है बच्चे ने पूरा कॉन्सेप्ट देखा कि नहीं। इसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट रिविजन का। कुछ चैप्टर्स में रिवीजन नहीं होता डायरेक्टली, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है कि वी हैव ऑल दी मॉड्यूल्स हियर, तो हम किसी भी मॉड्यूल को प्ले कर सकते हैं। अगर मैं पहले कोई प्ले कर लेता हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कोई, इसको हम दो कॉन्सेप्ट Force of friction. एक तो हम ये बोलते हैं Why does a एक तो हम ये बोलते हैं कि ये वो कंटेंट है जो बिफोर द एग्जाम आप उसको यूज कर सकते हो। दूसरा, इसके अंदर वो चैप्टर्स का कंटेंट भी रहता है जो हो सकता है इस स्टैंडर्ड से पीछे का कंटेंट हो। फॉर एग्जांपल, वो कंटेंट जिसका ये अगर 8 स्टैंडर्ड का बच्चा है तो 7th और 6th का भी कुछ कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, आपको टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे एक बटन दिख रहा होगा चेंज ऑडियो का। अब क्या होता है, इसको मैं प्ले करता car हूँ, stop? हिंदी का ऑडियो आएगा। आप जब इसे इंग्लिश करोगे तो सिर्फ इंग्लिश का आएगा। If you gently push a तो आप book यहाँ on पे the ना table, बाइलिंगुअल फीचर दिखा सकते हो कि हमारा पूरा कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये बाइलिंगुअल फीचर है, ठीक है जी। अब हमने दो एस्पेक्ट्स कवर कर लिए अपने, इंटरैक्टिव ई बुक और रिविजन। तीसरा एस्पेक्ट जो है हमारा, वो है हमारा एनसीईआरटी बुक। आपका पूरी जो बुक है इसमें, एनसीईआरटी की बुक, वो इसमें अवेलेबल होती है। हम स्कूल को ये भी कहते हैं, मान लो ये एनसीईआरटी बुक है, ये कॉपीराइटेड नहीं है, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई बुक्स होती हैं जैसे वो कॉपीराइटेड होती हैं और वो हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हम टीचर्स के नोट्स डाल देते हैं वहां पे, जो कि एज गुड एज बुक होता है, तो बच्चे उसको रेफर कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। हम 3 एस्पेक्ट्स बता चुके हैं पढ़ाई के। अब हम चौथे में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स। जैसे आपके लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इसी तरीके से हम एक्सपेरिमेंट्स भी कराते हैं। जैसे इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट का आप देखोगे, अब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, टू अंडरस्टैंड टू काइंड ऑफ चार्जेस, kind from the यहाँ charge पे on the आपका आ glass गया इसका rod. कंक्लूजन और प्रोसीजर। उसके Hence, बाद आपका ऑब्जर्वेशन, और ये एक्सपेरिमेंट पूरा जैसे आपका the लैब में होता है। experiment should be performed soon after rubbing. तो ये हो गया आपके एक्सपेरिमेंट्स। इसके बाद आता है रियल लाइफ वीडियो। जैसे आपके बुक्स में डायग्राम्स होते हैं, इसमें रियल लाइफ वीडियोस भी होते हैं। इसमें क्या है, टाइम लैप्स वीडियो है। जैसे हम लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग की बात कर रहे हैं, हमें फ्रॉग का डायग्राम तो पता है, यहाँ पे हमने उसका वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया, जो एक्चुअल वीडियो है कैसे वो फ्रॉग बड़ा होता है। ठीक है जी, अभी हमने दिखा दिए 5 एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। अब हम आते हैं 6th एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग पे। ये है फुली सॉल्व्ड एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी की पूरी बुक इसमें पूरी सॉल्व भी होती है। आप किसी भी क्वेश्चन को क्लिक करते हो, आपको उसका पूरा सोल्यूशन भी मिल जाता है इसके अंदर। एक एक सवाल जो है किताब का सॉल्व है। बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन मार्क का बटन भी है। मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये आस्क का डाउट है ऐप में इंटीग्रेटेड है हमारी। इसके अंदर क्या है, आप कोई भी सवाल पूछते हो, आपको उसका रिप्लाई यहीं के यहीं आ जाता है। ये हम इसका बैकएंड स्कूल को भी दे सकते हैं, टीचर्स को भी दे सकते हैं। जो भी सवाल बच्चा पूछेगा उसके सारे आंसर यहाँ पे होंगे। और ये स्पेसिफिक है, आप ऊपर देखोगे 6th साइंस चैप्टर 1 मेंशन्ड है। ये क्वेश्चन किधर से आया है,
ये है 4th साइंस द ग्रीन प्लांट्स, ये है ये 10th साइंस चैप्टर 6। तो बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सर्च है। आप चाहो तो अपने स्पेसिफिक ग्रेड में भी, आप सीबीएसई के नीचे देखो तो एक चेक बॉक्स है, आई कैन सर्च ओनली फ्रॉम सीबीएसई इन 8th and साइंस इफ आई एम फ्रॉम 8th and साइंस बैकग्राउंड। अब आप देखोगे बॉटम पे एक बटन है रेड कलर का, नॉट एबल टू फाइंड योर आंसर, आस्क फ्रॉम लाइव टीचर। आप इससे टीचर से लाइव भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और उन क्वेश्चंस के रिप्लाई भी आपके पास आ सकते हैं। ये ऑप्शन हम स्कूल को दे सकते हैं, वो चाहे तो अपने टीचर को भी इसमें बैकएंड में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन रहती है और आप जो सवाल पूछते हो यहाँ पे माई आस्क क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। आस्क अ डाउट इज इंटीग्रेटेड इनटू द ऐप इटसेल्फ। अभी तक हमने 6 एस्पेक्ट्स कवर करे हैं ऐप के अंदर। अब हमारा 7th एस्पेक्ट है जो कि सबसे पावरफुल एस्पेक्ट है, वो है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में क्या होता है, मान लो हमने घर से बच्चे को पढ़ने को दिया, हमारी ऐप का असली पर्पस तो घर से पढ़ने का है। हमने ऐप को घर से पढ़ने के लिए दिया और पता चला बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, 4 बच्चों ने आपस में फोन पे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, सबके आंसर पूरे आ गए परफेक्ट। तो इससे तो कोई प्रैक्टिस वेरीफाई हो ही नहीं सकती। दूसरा बच्चे ने किताब खोली और वहां से कॉपी कर लिया। हमारे ऐप का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर एक डेटा बैंक है। जब मैं खोलता हूँ साइंस को तो मेरे पास लिस्ट ऑफ चैप्टर्स आते हैं। मैं हो सकता है चैप्टर 12 और चैप्टर 13 चूज करता हूँ। अब क्या होगा इसके अंदर, मैं कोई भी कर सकता हूँ, चैप्टर 11 चैप्टर 12 और कोई भी कॉम्बिनेशन 2 3 4 जैसे चाहूँ उतने चैप्टर में चूज कर सकता हूँ। आप जब इसको स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो एक रैंडम क्विज बनेगी, यानी कि अगर 3 बच्चे इस दोनों चैप्टर को स्टार्ट करेंगे क्विज तो तीनों को अलग अलग क्विज आएगी, एक दूसरे से कॉपी नहीं कर सकते। दूसरा, बुक से अगर वो ढूंढेंगे आंसर तो आपको टाइमर ऊपर चल रहा है, आपको दिख रहा होगा, वो टाइमर में दिखेगा कि इस बच्चे ने कितना समय लिया है सवाल पे। तो दोनों चीजें हैं, तीनों चीजें इसके अंदर ट्रैक रहती है कि आप कॉपी ना कर पाओ, चीटिंग ना हो, और दूसरा आप जो करो वो कॉपी ना करो कहीं से, आपको खुद प्रैक्टिस करना है, चाहे आप सही करो या गलत करो। जब मैं इसे सबमिट करता हूँ तो मेरे पास पूरा एनालिसिस आ जाता है इसका, इसमें चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज ओवरऑल टेस्ट का एनालिसिस आ गया। जब इसके रिव्यू पे क्लिक किया तो हमें पता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सही है और ये उसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी आता है, आपने क्या सही किया आप उसको देख सकते हो, क्या उसका आंसर है, सोल्यूशन भी आता है इसके अंदर। अब आप एक चीज देखोगे, बहुत बार को एज अ गार्जियन आप शाम को गए बच्चे से, आपने पूछा बच्चा आज कितनी प्रैक्टिस करी आपने, क्या पढ़ाई करी, वो आपको झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि जो भी वो प्रैक्टिस करेगा नीचे आपको दिख रहा होगा, एक एक सवाल एक एक टेस्ट जो अटेम्प्ट करता है वो यहाँ पे सेव्ड रहता है। आप ये देखोगे मैं इसके आई को क्लिक करूंगा टेस्ट 1 के ऊपर तो मुझे ये भी पता चलेगा किन चैप्टर्स में से मैंने लिया था, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 में से। मैं इसको क्लिक करूंगा अगर टेस्ट 1 को तो जो टेस्ट मैंने अभी किया था वो एग्जैक्ट जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया है उसको दिखेगा यहाँ पे, और वही सोल्यूशन जो उसने कहीं सही किया कि नहीं, एक एक टेस्ट जो वो अटेम्प्ट करता है इसमें पूरा सेव्ड रहता है ऐप के अंदर। अब ये तो हो गया 6 जो हमारा 7th एस्पेक्ट था लर्निंग का, जो प्रैक्टिस था। अब आता है हमारा सबसे पावरफुल सेक्शन, वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में बच्चे की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस, साथ में आप जाते हो किसी एक सब्जेक्ट में तो उसकी चैप्टर वाइज परफॉर्मेंस और सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो। इसके बाद आता है आपका ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही पावरफुल फीचर है, बच्चे ने कब कौन सी क्विज कितने बजे करी उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे विजिबल होता है। आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जो है जो टेस्ट 1 है उसमें डेट आ रही है 9/12/2021, यानी कि 9 दिसंबर 7:02 पे हमने ये क्विज करी है जो हमने अभी करी है। यहाँ पे सारी की सारी उसकी पूरी की पूरी ट्रैक रिकॉर्ड आता है। इसके बाद आता है ऊपर एक सेक्शन है सजेशंस का। सजेशंस में आप जब भी कुछ करते हो, आप कौन चैप्टर में अच्छे से करते हो कोई में खराब करते हो, तो आपको विद स्माइलीज विद एवरीथिंग चैप्टर वाइज आपको सजेशंस आते हैं इंप्रूवमेंट के। तो ये हो गए आपके परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के बाद एक बहुत बड़ा सेक्शन है प्रोग्रेस का। प्रोग्रेस मतलब बच्चा पढ़ रहा है तो कितना पढ़ रहा है रोज के हिसाब से। इसमें दिख रहा है मैंने 3rd को पढ़ा, 4th को नहीं पढ़ा, 5th को नहीं पढ़ा, फिर 6th को पढ़ा, 7th को नहीं पढ़ा, 8th को पढ़ा और 9th को पढ़ा, कितनी देर पढ़ा और कितने मॉड्यूल्स देखे हैं वो सारा इसके अंदर दिखता है। आई कैन गो सब्जेक्ट वाइज ऑल्सो, सब्जेक्ट वाइज भी मेरी पूरी ग्राफ आते हैं, मैंने किस सब्जेक्ट को किस दिन कितनी देर पढ़ा और कितनी मेरी उसकी कवरेज है। आपको दिख रहा होगा मेरी साइंस की कवरेज ज्यादा है क्योंकि मैंने साइंस खोला था, मैंने बाकी सब्जेक्ट की कवरेज नहीं है, मेरी 2.84% मैंने देखा, इसको 97.16% देखना रह गया है। ये इसका पूरा डेमो है